السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کورونا وبا کے پیش نظر بلدی انتخابات میں بیلٹ پیپر کے ذریعے رائے دہی ہوگی، اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ۔ اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بھولک پور ڈویژن کے مختلف علاقوں کا کیا دورہ، ترقیاتی کاموں کی تکمیل پر اطمینان کا اظہار۔ زرعی بلوں کی پارلیمنٹ میں منظوری، بی جے پی کا اہم کارنامہ، مرکزی حکومت کے فیصلے سے ملک بھر کے کسان خوش ہیں، مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی نے کیا دعویٰ۔ ایل آر ایس کے ذریعے عوام پر بوجھ اور حکومتی خزانہ بھرا جا رہا ہے، کانگریس سینئر قائد بھٹی وکرمارکا نے ٹی آر ایس حکومت کے رویے پر کی تنقید۔ گانجے کی خرید و فروخت میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 3 اراکین گرفتار، 1,30,00,000 روپے مالیتی گانجا کیا گیا ضبط، ایس او ٹی ایل بی نگر زون اور عبداللہ پور میٹ پولیس کی کارروائی۔ ایس او ٹی سائبر آباد نے کرکٹ بیٹنگ ریاکٹس کو کیا بے نقاب، 8 افراد گرفتار، 40 لاکھ روپے نقد رقم کی گئی ضبط، سائبر آباد کمشنر کی میڈیا کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے جی ایچ ایم سی انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کروانے کا فیصلہ لیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کورونا وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، گریٹر ورنگل اور گریٹر کھمم کے انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کروانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوائے بی جے پی کے دیگر مسلمہ سیاسی پارٹیوں نے جی ایچ ایم سی انتخابات کا انعقاد بیلٹ پیپرز کے ذریعے کروانے کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی، جبکہ بی جے پی نے ای وی ایم کے ذریعے رائے دہی کروانے کی سفارش کی تھی۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ محنت اور جستجو کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھے تاکہ ایک صحت مند اور کامیاب زندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر سوندراراجن ایک خانگی اسکول گروپ کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام کو راج بھون سے آن لائن خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ کتابوں کے مطالعے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انہوں نے اساتذہ پر بھی زور دیا کہ وہ طلباء کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اپنی جانب سے تگودو کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ چہارشنبے کے روز پرگتی بھون پر 11:30 پر محکمہ داخلہ اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے علاوہ ریاستی وزراء کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کریں گے اور اس اجلاس میں ریاست میں امن و امان کی برقراری کا جائزہ لیا جائے گا۔ 7 اکتوبر کو منعقد ہونے والے اس اجلاس میں چیف سیکرٹری سومیش کمار، ڈی جی پی مہندر ریڈی، کمشنر پولیس، ڈی جی، ایڈیشنل آئی جی اور محکمہ جنگلات کے اعلیٰ عہدیدار بھی شرکت کریں گے۔ سابق مرکزی وزیر وینکٹ سوامی کی 91ویں یوم پیدائش کے موقع پر مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی، سابق رکن پارلیمنٹ وویک وینکٹ سوامی، سابق رکن اسمبلی ڈاکٹر لکشمن اور دیگر نے وینکٹ سوامی کے مجسمے واقع ٹینک بانڈ پر پھول مالائیں پیش کرنے کے بعد ان کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے بتایا کہ وینکٹ سوامی نے دلتوں کی ترقی اور ان کو انصاف دلانے کی خاطر ہمیشہ جدوجہد کرتے ہوئے انہیں انصاف دلوایا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پیر کی صبح حلقہ مشیر آباد کے بھولک پور ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے مجلس کی نمائندگی پر کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ اخیل، مجلس کے سرگرم کارکنان شریف اور یامین خان کے علاوہ مقامی صدور و معتمدین اور مختلف محکمہ جات کے عہدیدار بھی اس دورے میں موجود تھے۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अहदेदारों की तरफ से मुख्तलिफ तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी और मजलिस की नुमाइंदगी पर 7 करोड़ रुपये की लागत से नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है, जबकि 10% का काम अभी बाकी है और इसे भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि भोलकपुर की नई पाइपलाइन का भी वादा किया गया था और ये बताते हुए उन्हें मसरत हो रही है कि 12 करोड़ रुपए की लागत से नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है और इसके पाइपों की तनसीब का काम भी शुरू हो चुका है। अंदरून 8 या 10 दिन नई पानी की लाइन का काम शुरू हो जाएगा और 3 से 4 महीनों के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव को उन्होंने सीवरेज लाइन और पानी की नई लाइन के कामों का जायज़ा लेने की भी दावत दी है। उन्होंने बताया कि बहादुरपुरा असम्बली हल्के में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से आरामगढ़ तक 520 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखा जाएगा, जबकि मिरालम टैंक में म्यूज़िक फाउंटेन का काम मंजूर हो चुका है और इसका भी जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आवाम के बरक़ी, बल्दी और आबरसानी के मसाइल को हल किया जाएगा। आज सुबह 6:30 बजे मैं भोलकपुर को आया हूँ, भोलकपुर बल्दी वार्ड में, और यहाँ पर हमारे मुताल्लिक़ा रुकन बल्दिया जनाब वकील साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान शरीफ साहब, यामीन खां साहब और दीगर सदर मुतमदीन के साथ और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ मैंने यहाँ पर दौरा किया, क्योंकि आवाम को ये बताना ज़रूरी है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भोलकपुर की आवाम से वादा किया था कि यहाँ पर एक नई सीवरेज लाइन पूरे भोलकपुर में डाली जाएगी और साथ ही साथ पानी की लाइन का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर भोलकपुर वार्ड में 7 करोड़ की लागत से एक नई सीवरेज लाइन का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। एक 10% काम बाकी है ग्रेवयार्ड कब्रस्तान से लेकर जाने का है। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भोलकपुर में एक नई सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है, 10% काम है वह इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने वादा किया था आवाम से कि यहाँ पर नई पानी की लाइन पूरे भोलकपुर वार्ड में डाली जाएगी। तो मुझे बताते बड़ी खुशी हुई कि 12 करोड़ की लागत से एक नई पानी की लाइन मंजूर हो चुकी है, पाइप भी यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते 8-10 दिन के अंदर नई पानी की लाइन का काम भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भोलकपुर में 2009 में एक बड़ा ही वाक़या हुआ था और उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये नई पानी की लाइन डाली जाएगी 12 करोड़ की लागत से। इंशाअल्लाह 3 से 4 महीने के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा और मुझे यकीन है कि ये 2 बड़े अहम काम मुकम्मल होने के बाद भोलकपुर में जो बहुत बड़ी तकलीफ़ बनी हुई थी और ख़ास तौर से इस वार्ड में बड़ी बड़ी पतली गलियां हैं, चाहे वो मोहम्मद नगर हो या दूसरे एमआईएम का इलाका हो, एमआईएम गली बोलते, तो इन तमाम पतले गलियों में वाटर वर्क्स के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी काबिलियत के साथ वहाँ पर ये सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल किया और मुझे यकीन है कि पानी की लाइन का काम भी इंशाअल्लाह ताला हम तमाम के ताउन से मुकम्मल होगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अनक़रीब में वज़ीर बल्दी नज़्म जनाब के.टी. रामाराव साहब यहाँ पर ख़ुद आएंगे। मैंने उनको दावत भी दी है कि वो आकर ये 12 करोड़ की पानी की लाइन और सीवरेज लाइन का जो काम मुकम्मल हो चुका है वो उसका मायना करें और पानी की लाइन का संगे बुनियाद रखें। और जब वो आएंगे यहाँ पर भोलकपुर में तो मैं भोलकपुर के अवाम को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 2018 के असम्बली इलेक्शन में भी हमने हुकूमत से ये वादा लिया था कि आपने हमसे वादा किया था कि सीवरेज और पानी की लाइन डाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजूर हुआ है। तो जनाब के.टी. रामाराव वज़ीर बल्दी नज़्म यहाँ पर आकर इस वाटर लाइन का इफ्तिताह करेंगे और साथ ही साथ उस दिन बहादुरपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में
नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से लेकर आराम घर तक एक फ्लाईओवर ब्रिज है 520 करोड़ की लागत का, उसका भी संग बुनियाद डालेंगे। और साथ ही साथ मिरालम टैंक में एक म्यूज़िक फाउंटेन का भी इंशाअल्लाह ताला वो काम मंजूर हो चुका है, उस काम का भी इफ्तिताह होगा। पूरी कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों की तरफ से, अराकीन बल्दिया, सदर मुतमरीन तरफ से की जा रही है कि आवाम के सहूलत के लिए जो ख़ास तौर से बल्दी, बरक़ी, आबरसानी के काम हैं उसको पूरा किया जाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ होलापुर के तमाम मजलिस के सदर मुतमरीन को, ज़िम्मेदारों को, कि उनकी बड़ी मेहनत, कोशिश की वजह से ये तमाम काम हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं हमारे वाटर वर्क्स के एमडी साहब का और ख़ास तौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अरविंद कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने उनको बार बार उनकी तवज्जो दिलानी दिलाई, हमारे लोग जाकर मिले और उन्होंने भी बराबर अपनी उस काम को टेकअप किया, उसको मंजूर किया। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके मदीना नगर डी ब्लॉक और अतराफ़ व अकनाफ़ का पैदल दौरा करते हुए मुक़ामी अवाम से मुलाक़ात की और मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर पाशा क़ादरी के हमरा मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर वाजिद अली ख़ान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। मुक़ामी अवाम ने सीवरेज मसाइल, बरक़ी पोल्स की तनसीब और दीगर कामों की जानिब मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली को मुतवज्जो किया, जिस पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द तरक्याती काम करवाए जाएंगे। के बंदी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज मदीना नगर डी ब्लॉक का दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कारपोरेटर वाजिद अली खान साहब के हमरा इब्तिदाई के सदर मुतमरीन, बल्दी, बरक़ी, आबरसानी के अहदेदारों के साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर देरी ना ये है कि यहाँ के नाले की डिसिल्टिंग नहीं हुई इस साल। याकूतपुर में 2-4 जगह है या नालों की डिसिल्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह की वजह से एक दवीपे के नाले की डिसिल्टिंग हुई, उसकी वजह से पूरे नालों से थोड़ी राहत मिली अतराफ के लोगों में। इस बारिश के सीजन में एक वक्त की बस्ती में थोड़ा पानी ओवरफ्लो हो गया। मजीद हम नालों के ताल्लुक से वसी और बड़े पैमाने पर इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। इंशाल्लाह वो काम होने के बाद से आवाम को कई सालों तक राहत मिलेगी। और इलेक्ट्रिक पोल्स के ताल्लुक से लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे बस घरों को लग के इलेक्ट्रिक के पोल है, घरों के ऊपर से एचटी की लाइन जा रही है, उसको चेंज करने के वास्ते इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स को उसको पाबंद किया गया है जल्द से जल्द उसको चेंज करना। जो घरों पे पोल जा रहे मकीनों के लिए खतरा है वो उसका इंतजाम किया जाए। सीवरेज की लाइन के ताल्लुक से भी 1-2 गलियों में बताया गया, वहाँ के इंजीनियर्स को बता दिया गया कि सीवरेज के एस्टीमेट बना। रोड के ताल्लुक से एरिया कारपोरेटर वाजिद अली खान साहब कई प्रपोजल या एरिया के बस्ती के दाखिल करे हुए मंजूरी के मराहल में इंशाल्लाह जैसे मंजूर होगा और टेंडर होगा काम का आगाज होगा। वक्तन फ़क्तन बल्दी, बरक़ी, आबरसानी मसाइल की यकसूई के लिए जहाँ कहीं भी आवाम शिकायत करती है बर वक्त उनकी शिकायत को पूरा करने के लिए एरिया में जाते हैं, दौरे करते हैं और सदर मजलिस की हिदायत पर उसकी मंजूरी लेकर फौरी काम कराते हैं। आपके चैनल के जरिए फिर आवाम से अपील करता हूँ खुसूस याकूतपुरी की कि अगर कोई मसाइल है तो आप डायरेक्ट कॉरपोरेटर को, सदर मुतमदीन को या मुझे इत्तला दे सकते हैं। ऑफिसरों के साथ दौरा करके आपकी शिकायत को दूर किया जाएगा। शुक्रिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंचार्ज रियासत एम टैगोर और दीगर पार्टी कायदीन मंगल के रोज दुबाक असम्बली हल्के का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात करेंगे और टीआरएस हुकूमत की नाकामियों से आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने वजीर फाइनेंस हरीश राव की जानिब से कांग्रेस और टीआरएस में मफाहमत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि हकीकतन खुफिया तौर पर टीआरएस और बीजेपी में ही मफाहमत है।
ఆమె పద్ధతిని వక్రీకరిస్తున్నారు. చెప్పినాం, లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చినాం, జిల్లా కలెక్టర్కి ఇచ్చినాం. కానీ వీళ్ళ వైఖరి ఎట్లుందంటే ఎవడు నవ్వుతే నాకేంది, ఎవడేమంటే నాకేంది, మేమైతే సిగ్గు తప్పినాం కదా అనే టైప్లో ఉంది బిహేవియర్. మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏమంటారు అంటే, ఈ ఎలక్షన్స్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీ డాక్యుమెంటెడ్గా ఎలక్షన్ కోడ్ వయోలేట్ చేసింది కాబట్టి, అంటే ఇతర పార్టీల గుర్తుపై గెలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఓటర్ లిస్టు నోటిఫై అయిన తర్వాత బహిరంగంగా డాక్యుమెంటెడ్గా పార్టీ ఫిరాయింపు ప్రోత్సహించింది కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ క్యాండిడేట్ని డిస్క్వాలిఫై చేయాలని చెప్పి మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అపీల్ చేస్తున్నాం. मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से ज़र बिल की मंजूरी के बाद बाज़ छोटी सियासी जमातों और उसके क़ायदीन की जानिब से रस्मी तौर पर एहतजाज करते हुए ज़र बिल की मुखालिफत की जा रही है, जबकि मुल्क भर के किसान ज़र बिल पर मसरत का इजहार कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि जो भी सियासी जमातें और क़ायदीन ज़र बिल की मुखालिफत कर रहे हैं वो किसानों के हमदर्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसानों की फलाह बहबूद नहीं चाहते, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों की तरक्की के लिए ज़रई बिल को पेश किया है। దేశ ప్రజలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బొమ్మలను తగలబెట్టి ఈరోజు ఎన్నికల్లో నామరూపాలు లేకుండా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని చేశారు. పార్లమెంటులో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు చెరో సీటు ఏమో వచ్చినట్టుంది, లోక్సభలో వాయిస్ లేదు. ఇంకా ఇంత బుద్ధి చెప్పినా కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల యొక్క వైఖరి, వితండవాదం, పడికట్టు పదాలు. रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, DGP महेंद्र रेड्डी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए बताया कि महकमे IT और महकमे दाखिला आपस में तालमेल करते हुए GHMC के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरे नस्ब करने के इक़दाम करें। KT रामाराव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बरकरारी के लिए बेहतर इक़दामात करने की हिदायत दी है। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी और सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम साबित हुई है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वक्फे से नई स्कीमात रूबे अमल लाते हुए आवाम को उसमें उलझाए रखते हैं। जीवन रेड्डी ने हरीश राव की जानिब से कांग्रेस और बीजेपी में मफाहमत की बात को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार देते हुए बताया कि कौन किसके साथ है ये रियासत और दुबाक असम्बली हल्के की आवाम अच्छी तरह जानती है। ఈ ధరణి ప్రోగ్రామ్ ఏంది, ఆల్రెడీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఇంటింటికి తిరుగుతున్నారు. ఇదే ముఖ్యమంత్రి 2015లో సకల జన్మ సమ్మె అని ఈ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరెవరు ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎవరు, పిల్లలు ఎవరు, ఇల్లు ఏంది, ప్రాపర్టీ ఏంది అని అన్నీ ఆల్రెడీ సమీకరణ చేశారు. रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्यात ई दयाकर राव ने ज़िले वरंगल और रूलर के बालाजी मौजू में 9 तामीर करदा 25 डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और इस्तिफादा कुनिंगान से तबादले ख्याल भी किया। अलावाज़ी रियासती वज़ीर ई दयाकर राव ने बंधनपल्ली में बदकमा मुजस्मे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी और कुदरती पार्क का भी मुआयना किया। बीजेपी MLC एम रामचंद्र राव ने टीआरएस पार्टी पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए एक शिकायतनामा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के हवाले किया है। एन रामचंद्र राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि दुबाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में टीआरएस पार्टी ने हुकूमती इमारात, आंगनवाड़ी सेंटर्स व दीगर हुकूमती इमलाक पर अपनी पार्टी के
लोगो कलर का इस्तेमाल करते हुए सरी खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। बैठिए साहब, बैठिए प्लीज। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की आवाम पर LRS स्कीम के तहत माली बोझ आयद करते हुए करोड़ों रुपये अपने ख़जाने में जमा कर रहे हैं। उन्होंने रियासत की आवाम को ये तयक़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में 2 से 3 साल बाद कांग्रेस दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी और तमाम टैक्स के अलावा LRS स्कीम को ख़त्म करते हुए आसान शराइत के साथ अराज़ियात की रजिस्ट्री करने के इक़दाम किए जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो औरंगज़ेब की तरह टैक्स आयद कर रहे हैं और तुगलक की तरह फैसले करते हुए जमहूरी रियासत में जागीरदाराना निज़ाम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। బిడ్డ పెళ్లి పనికి వస్తుందనో, లేకపోతే కొడుకు పెద్ద అయితే చదువుకోవడానికి పనికి వస్తుందనో, లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఏదో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పనికి వస్తుందనో రూపాయి పోగేసి కొనుక్కున్నటువంటి ప్లాట్లకు సంబంధించి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున LRS స్కీమ్ అని పెట్టి ఆ LRS స్కీమ్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేయమేమని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ LRS కట్టి రెగ్యులైజ్ చేసుకోకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ చేయమని చెప్పి అన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు ఆపి పెద్ద భయాందోళనకు గురి చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో. మేము గతంలో చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాం, మీరు ఇచ్చినటువంటి LRS స్కీమ్ ఏమాత్రం అది హేతుబద్ధంగా లేదు. విపరీతంగా ప్రతి ప్లాట్లో మీరు వాటా అడుగుతూ ఉన్నారు. ప్రతి పేదవాడు మధ్యతరగతి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వాడు కొనుక్కున్న ప్లాట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా అడగటం కరెక్ట్ కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెగ్యులేట్ చేయాలి తప్ప ఆస్తుల్లో వాటా అడగకూడదు. जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर जी प्रवीण कुमार ने बगैर लेआउट के तमाम अराजियात को बाकायदा बनाने के लिए LRS के तहत दरख्वास्तें दाखिल करने की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जलपली म्यूनसिपलिटी हदूद में कई ऐसे वेंचर्स हैं जो बगैर लेआउट के फ़रोख्त किए गए हैं। उन्होंने ऐसे प्लाट ओनर से अपील की है कि फौरी इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करें। ये जलपली म्यूनसिपल एरिया लिमिट्स में 19 इलीगल वेंचर आए हैं। इससे पहले बने से वो परमिशन बिना परमिशन से बंद दिए, वो बेच दिए, चले गए वेंचर लोग। अभी वो अभी जो खरीद के वो बैठा हुआ प्लाट में वो लोगों को मुश्किल चल रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ये पूरा प्रॉब्लम्स हटाने के लिए ये जीवो निकाला। इससे वजह से अपन के पास 92 एकर्स का इलीगल लैंड्स में वेंचर्स हुआ। वो इसमें तो टोटल 3856 प्लॉट्स भी फाइंड आउट हुआ हमारी इंक्वायरी में। और इंक्वायरी होने के बाद पब्लिक को पूरा अवेयरनेस कर दिए, पब्लिसिटी करे, फ्लेक्सियाँ दिए, पाम्पलेट्स दे दिया, माइक सेट्स में पब्लिसिटी दिया, कॉरपोरेटर से काउंसलर के साथ मीटिंग रखे, लोकल पब्लिक के साथ भी मीटिंग रख के अवेयरनेस कर दिए। वो करने के बाद अपन को 4,000 के ऊपर ही एप्लीकेशंस आया। जो एक्सपेक्ट करें हम उससे ज़्यादा आगे रेगुलराइजेशन का अभी वो मामला चल रहा, 15 तारीख तक चालू रहता है। पब्लिक जरा आगे आके ये रेगुलराइज करे तो अच्छा होता, पब्लिक को भी फ़ायदा होता और इससे गवर्नमेंट को भी थोड़ा फ़ायदा होता। जरा देख के सब लोग मिल के जरा म्यूनसिपल स्टाफ से कोऑपरेट करके जो भी मुश्किल निकले तो इधर आए तो हम डेली वो इंक्वायरी करके पूरा से साफ सीधा करके कैसा करना, कैसा अपलोड करना वो भी गाइडेंस दे देंगे ऑफिस में। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1335 नए केसेस और 8 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1171 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,06,011 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,72,388 बताई गई है। आज सुबह 2,176 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 27,052 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 262 नए केसेस सामने आए।
एसओटी एलवी नगर जोन ने अब्दुल्लापुर मेट पुलिस के इश्तराक से बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स के एक रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस 5 मुलजिमीन के जुमला 2 को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक विशाखापट्टनम से उत्तर प्रदेश रियासत को गांजे की मुंतकिली की जा रही थी। उस रैकेट को बेनकाब करते हुए 1010 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 1,03,04,000 रुपये जब्त किए गए। हिरासत में लिए गए अफराद में 24 साला मोहम्मद रमज़ान मुतवत्तिन हरियाणा, 25 साला एस गौतम राव मुतवत्तिन उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जबकि 3 अफराद मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। Today, that is 5th of October 2020, Special Operation Team of Rachkonda Police along with Abdullapur Met Law and Order Police, they have intercepted one container belong to Haryana state, HR 55 M459, and recovered 1010 kg of ganja, which is a banned narcotic drug, along with 4,000 rupees cash, 2 mobile phones, and 2 persons belong to Haryana and Uttar Pradesh state, namely Mohammad Ramzan, native of Nuhu district of Haryana, and Shashikant Gautam Rao, native of Varanasi district of Uttar Pradesh. They are arrested. Basically, one Vivek Singh alias Alok, who is native of Varanasi of Uttar Pradesh, he is a kingpin. He is procuring this banned marijuana alias ganja from Mahadev of Koraput district of Odisha. One Imran of Nuhu district of Haryana is providing a container to him for this drug trafficking. From Odisha, Andhra Pradesh border, they are transporting this ganja to Uttar Pradesh and Haryana state. They are purchasing at 3,000 rupees kg and selling at 9,000 rupees kg. Today this 1,010 kg ganja we have recovered from a secret cabin specially formed in the container behind the driver, which is having the worth rupees 1,30,04,000. The good work done by our special operation team has been rewarded. After the unlock, we have seen again the movement of these vehicles, especially the interstate transport of ganja from agency area to other part of our country like Maharashtra, Madhya Pradesh, UP, Haryana has been started, and developing the information. We are intercepting, arresting the accused, booking them under Preventive Detention Act, and we are also trying for fast track trial against them when they are inside the jail. Our appeal to the citizen, whenever they are coming across the drug peddler who are transporting, who are selling this contraband ganja, immediately they should inform the law enforcement agency. Every information will be rewarded and informer's name will be kept secret. Thank you. साइबराबाद कमिश्नरेट से वाबस्ता एसओटी ने क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स को बेनकाब करते हुए उसमें मुलविस तकरीबन 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया, जबकि जुमला 40,06,350 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार IPS ने मीडिया को बताया कि माधवपुर जोन से 5, शमशाबाद जोन से 1 और बालानगर जोन से 1 केस क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया गया है। उन्होंने बताया कि IPL मैचेस के आगाज ही से मुख्तलिफ जोन्स पर SOT की गहरी नज़र है और बावसूख इत्तलात पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 7 लोगों को हम लोग 7 लोगों को अरेस्ट किए गए। उनसे हम लोग ऑलमोस्ट 22,89,400 रुपीज़ कैश सीज किया और 13 लाख रुपीज़ का बैंक अकाउंट में हम लोग फ्रीज किया है। इससे पहले भी हम लोग 7 केसेस बुक किया है, क्योंकि IPL सीजन स्टार्ट हुआ है लास्ट 19 से, सितंबर 19 से, और नवंबर 3 तक एंड हो जाएगा। ऑलमोस्ट 56 मैचेस है। सो
7 केसेस हम लोग बुक किया, उसमें 30 अक्यूज को अरेस्ट करके अभी तक 40,06,350 रुपीज़ को सीज किए गए। मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी ये बेटिंग में नहीं जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वो लोग भी लॉस हो रहे, फैमिलीज लॉस हो रहे, जॉब्स चले जा रहे हैं। और लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लोगों को लोन मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेके भी खेल के जो लोन भी लेते बाद में लोन दिया उनको भी लॉस होने का चांस रहते हैं। और इस बेटिंग में बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग कौन सा ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका फ्रेंड्स कौन है, कितना पैसा ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, उसके बारे में भी सब इंक्वायरी करने के लिए मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा। ये बेटिंग से भी फ्रेंड्स दूर हो रहे, फैमिलीज दूर हो रहे, रिलेशंस के ऊपर भी बहुत असर पड़ रहा है। सो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बेटिंग की मामले में मत फंसाने के लिए, क्योंकि फंसाने के बाद बाहर आने का चांस नहीं रहते। और ये जो कोई भी कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं है, वो हार्ड वर्क करे थे पैसे आते हैं। सो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये IPL सीजन में बेटिंग की मामले में मत फंसाने के। सेंटर जोन टास्क फोर्स टीम ने क्रिकेट बेटिंग के ऑनलाइन रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक रेड हिल्स में चलाए जा रहे रैकेट को बेनकाब किया गया, जबकि महेश प्रसाद तिवारी, P मुकेश कुमार और P विक्रम को हिरासत में लेते हुए 47,240 रुपये नकद रकम व दीगर अशिया जब्त की गई। बालापुर पुलिस ने बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाली एक तंजीम के हमरा एराकुंटा बालापुर मंडल में धावा करते हुए बच्चा मजदूरी में मुलविस तकरीबन 20 बच्चों को आज़ाद करवाया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि बच्चों को रियासत बिहार से हैदराबाद स्मगल करने का ये मामला है, जिसके दौरान बच्चा मजदूरी करवाने वाले तकरीबन 5 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में 23 साला मोहम्मद तौफीक, 28 साला मोहम्मद सरफराज, 22 साला मोहम्मद मुजाहिद, 30 साला इम्तियाज़ और 37 साला मानू देवी शामिल हैं। हैदराबाद में आते ना वो concentrate on old cases. इज्जत व नामूस के नाम पर कुछ अरसे कबल हेमंत कुमार का कत्ल किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए केस को हल किया था। ताहम इस केस में मुलविस 4 मजीद मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 52 साला इसराजू, 32 साला मोहम्मद पाशा, 48 साला बी साई अन्ना शामिल हैं। वाज़ेह है कि गच्चीबौली पुलिस ने इस केस में 14 मुलजिमीन को 25 सितंबर को ही गिरफ्तार किया था। DCP माधवपुर जोन वेंकटेश्वरलू ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। ఉదయం గచ్చిబౌలి పోలీసు వాళ్ళు ఈ హేమంత్ కుమార్ మర్డర్ కేసులో మెయిన్ అసాసినేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎరుకల కృష్ణ, విలేజ్ బట్టినాగులపల్లి, మహమ్మద్ పాషా ఏలియాస్ లడ్డు, అతని విలేజ్ కూడా బట్టినాగులపల్లి, వీళ్ళిద్దరితో పాటుగా సోమయాల రాజు వయసు 52 సంవత్సరాలు, ఇతను కూడా వట్టినాగులపల్లి. అదేవిధంగా బ్యాగరి సాయన్న, ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ పటాన్ చెరువు, రౌడీ షీటర్ ఆఫ్ పటాన్ చెరువు పోలీస్ స్టేషన్లో రౌడీ షీటర్. ఈ నలుగురిని ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఈ కేసులో మేము 14 మెంబర్స్ని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మొదటి ముద్దాయి లక్ష్మారెడ్డి, దొంతి లక్ష్మారెడ్డి, అదేవిధంగా గూడిరి యుగంధర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసి 6 రోజులు పోలీస్ కస్టడీ అయిన తర్వాత
వాళ్ళని ఈరోజు లాస్ట్ పోలీస్ కస్టడీ, వాళ్ళని కూడా కోర్టు ముందు హాజరుపరచడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఇచ్చిన కన్ఫెషను మరి మిగతా నేరస్తులు ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనకు మెయిన్గా ఈ కేసులో చంపిన వాళ్ళ దాంట్లో హేమంత్ కుమార్ని దిక్షు యాదవ్ ఆల్రెడీ ఇతను అరెస్ట్ అయ్యి జైల్లో ఉన్నాడు. बालापुर पुलिस ने रोजगार का झांसा देते हुए रकम ऐंठने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से फर्जी आईडी कार्ड्स और 5,44,936 रुपये नव रकम भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक 23 साला ए प्रवीण को हिरासत में लिया गया, जो रोजगार दिलाने का झांसा देते हुए रकम हासिल करने के रैकेट में मुलविस पाया गया है। जिले विकाराबाद बंचानपल्ली में वाक़ कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू मुकामी अवाम ने ब्रिज की तामीर को जल्द अज जल्द तकमील करने का मुतालबा करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने बताया कि हैदराबाद से चेवड़ला जाने वाले ट्रैफिक को कई मसाइल का शिकार हैं। तकरीबन 200 अफराद ने इस एहतजाज में शिरकत की। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अफमी की जानिब से डॉक्टर औसाफ सईद हिंदुस्तानी सफ़ीर बराए सऊदी अरब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें एक्सलेंस अवार्ड पेश किया गया। शिकागो अमेरिका में मुनक़िदा डॉक्टर औसाफ की तहनीती तकरीब में उन्हें इस एज़ाज़ से नवाजा गया। अफमी के सरबराह डॉक्टर खुतबुद्दीन ने मज़कूरा तकरीब का अहतमाम किया था, जिसमें साबिक़ सदर ट्रस्टी डॉक्टर ताजुद्दीन, डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, सैयद अशफाक हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डॉक्टर खुतबुद्दीन ने अपने खिताब में डॉक्टर औसाफ को उर्दू के सफ़ीर करार दिया, जो हिंदुस्तानी तहजीब के नुमाइंदे और हैदराबादी इक़दार के तर्जुमान हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि वो अपने वतन के परचम वक़ार को सरबुलंद करने की गर्ज से इक़दामात करते आए हैं और आगे भी मुमकिन इक़दामात करते रहेंगे। On behalf of the American Federation of Muslims of Indian origin of USA and Canada, the 2020 Distinguished Leadership Award presented to Honorable Dr. Osaf Saeed, the Indian Ambassador to Saudi Arabia, for his outstanding leadership in diplomatic and foreign services and his uniting efforts and untiring efforts in promoting Indian ethos. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली जाफ़र हुसैन मिराज ने विजयनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का ज़ोनल कमिश्नर पी प्रावनिया और दीगर GHMC अहदेदारों के हमरा दौरा किया और तरक्याती कामों के सिलसिले में मुआयना भी किया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान, अब्दुस्सुबान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस रुकन असम्बली ने ज़ोनल कमिश्नर की तवज्जो ज़ेर तकमील तरक्याती कामों की जानिब करवाते हुए ज़ोर दिया कि जल्द अज जल्द तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। ज़ोनल कमिश्नर पी प्रावनिया ने तयक़ुन दिया कि डिवीज़न के तरक्याती कामों की पेशरफ्त में तेज़ी पैदा की जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना वबा के पेश नज़र बल्दी इंतखाबात में बैलेट पेपर के जरिए राय दही होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया फैसला। और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भोलकपुर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा, तरक्याती कामों की तकमील पर इत्मीनान का इजहार।
زرعی بلوں کی پارلیمنٹ میں منظوری بی جے پی کا اہم کارنامہ، مرکزی حکومت کے فیصلے سے ملک بھر کے کسان خوش ہیں، مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی نے کیا دعویٰ۔ ایل آر ایس کے ذریعے عوام پر بوجھ اور حکومتی خزانہ بھرا جا رہا ہے، کانگریس سینئر قائد بھٹی وکرمارکا نے ٹی آر ایس حکومت کے رویے پر کی تنقید۔ گانجے کی خرید و فروخت میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 3 اراکین گرفتار، 1.30 کروڑ روپے مالیتی گانجا کیا گیا ضبط، ایس او ٹی ایل بی نگر زون اور عبداللہ پور میٹ پولیس کی کارروائی۔ ایس او ٹی سائبر آباد نے کرکٹ بیٹنگ ریاکٹس کو کیا بے نقاب، 8 افراد گرفتار، 40 لاکھ روپے نقد رقم کی گئی ضبط، سائبر آباد کمشنر کی میڈیا کانفرنس۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔